I'm very glad to share God's word again with you. मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार मैं परमेश्वर के वचन को आपसे बांट सकता हूँ। Actually, last time we were seeing about the blessedness of knowing God. और पिछले बार हम देख रहे थे परमेश्वर को जानने की जो धन्यता है उसके विषय में। We were seeing this verse in Matthew chapter 7 verse 22. मत्ती 7:22 के इस वचन को हम देख रहे थे। Actually, I want to read this verse slightly differently. और इस वचन को थोड़े अलग तरीके से मैं पढ़ना चाहूंगा। Matthew 7:22. Many will say to me in that day, Lord, I've attended meetings regularly. I've attended Zoom meetings regularly. I read Bible regularly. But Jesus will tell them that day, I never knew you. और मत्ती 7:22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, मैंने हर एक सभा को बिल्कुल नियमित तौर पर मैं उसमें जुड़ गया, हर एक जूम सभा में मैं नियमित तौर पर जुड़ता था, और प्रभु उनसे कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। The reason is because you practice lawlessness. उसका कारण ये है कि तुम कुकर्म करने वाले या पाप या अधर्म करने वाले थे। See, if we have to hear those words in that last day, it will be absolutely terrible. अगर ये वचन हमें प्रभु से उस अंतिम दिन पर सुनने पड़े तो ये बहुत ही एक बुरी और दुख भरी बात होगी। Our desire should be that we should be absolutely certain about our salvation. हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हमारे उद्धार के बारे में हम बिल्कुल आश्वासित हो। Christianity, true Christian life is a relationship, a deep relationship with Jesus Christ. सच्चा मसीही जीवन एक गहरा संबंध है, एक यीशु के साथ एक गहरा संबंध है। It's a life where we really enjoy Jesus Christ. वो एक ऐसा जीवन है जहां हम वाकई में यीशु मसीह का आनंद उठाते हैं। See, it's written here that what Jesus told them is, I never knew you means I never came to a close relationship with you. और जब यहाँ यीशु उनसे कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तो इसका मतलब है मैं कभी तुमसे एक नजदीकी निकट का संबंध या रिश्ता ही नहीं बना पाया। The other day I was talking to one young person who was almost born and brought up in the church. उस दिन मैं एक जवान व्यक्ति से बात कर रहा था जिसके जन्म से और वो बड़ा भी एक कलीसिया में ही हुआ था। In our church, in fact. और हमारे कलीसिया में। And when I talked to him, I mean, I was asking about his salvation when has he come to the Lord. और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे उद्धार के बारे में क्या, कब तुमने प्रभु को जाना? What he was telling is, see, I don't see TV, I don't look at bad pictures, I don't do this, I don't do this, and such things he was telling. और फिर वो मुझे बताने लगा, मैं टीवी नहीं देखता, मैं जो बुरे ऐसे पिक्चर्स है वो नहीं देखता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसी बातें वो मुझे बताने लगा। And I was wondering whether he has truly come to a relationship, real born again experience with Jesus. और फिर मैं सोचने लगा, क्या ये वाकई में यीशु के साथ एक नए जन्म के इसने अनुभव किया है? क्या वो यीशु मसीह के साथ एक संबंध रखता है? I was asking him such questions. Is the Holy Spirit witnessing in your heart that you are the child of God? मैं उससे ऐसे प्रश्न करने लगा कि क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में गवाही देते हैं कि तुम परमेश्वर की संतान हो? Are you living in a daily relationship with Jesus Christ? क्या दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ एक संबंध में तुम जी रहे हो? Is the joy of salvation in your heart? क्या उद्धार का आनंद तुम्हारे हृदय में है? See, I want to tell my own testimony to all of you. मैं अपनी खुद की गवाही आप सबको बताना चाहता हूँ। I am born in a Christian family. My father was a believer right from the age of 24. एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता जो थे वो 24 साल की उम्र से ही एक मसीही थे। And I know that right from my childhood, even though we were in a Protestant group, my father used to take me to Pentecostal meetings. और मैं जानता था कि मेरे बचपन से ही, यद्यपि हम एक organized church, in fact. Brother, you were in a? It was in a Marthoma, which is a organizational church
my father used to take me to Pentecostal meetings. ओके, मैं मार्थोमा कलीसिया से था, उसके बावजूद मेरे पिता जो थे मुझे पेंटिकॉस्टल सभाओं में ले जाते थे। That is not on Sundays, but whenever there was special meetings. ये संडे या इतवार के दिन नहीं था, ये तब होता था जब कोई विशेष सभाएं होती थी तो। So I had the opportunity to hear God's word and about salvation right from my childhood. और मेरे बचपन से ही मेरे पास ये मौका था, अवसर था कि मैं प्रभु के वचन के बारे में सुनूं और उद्धार के बारे में सुन सकूं। I remember when I was in 12th standard, one day I remember kneeling down in my bedside and praying, Lord, I give my life to Christ. Lord, please come into my life like that. मुझे याद है एक बार जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मैं अपने घुटने टेक कर अपने बिस्तर के पास प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं अपना जीवन मसीह को देना चाहता हूँ, तू मेरे जीवन में आ जा। But I don't know whether I was born again at that time. पर मैं नहीं जानता उस समय मेरा नया जन्म हुआ या नहीं। I had this doubt whether I've really saved for a very, very long time. मेरे अंदर एक शक, एक संदेह था कि क्या मेरा वाकई में उद्धार हुआ है, और काफी लंबे समय तक ये संदेह मेरे हृदय में था। I also remember that I gave my life to Christ on several occasions. और मुझे ये भी याद है कि कई अलग-अलग अवसरों पर, कई अलग-अलग समयों पर मैंने अपना जीवन मसीह को दिया। But as I went on in my life, I knew that I'm loving sin in my heart. पर जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, मैं ये देख पा रहा था कि मेरे हृदय में मैं अब भी पाप से प्रेम करता हूँ। And even though my outward life was okay, in secret I was doing sin, which was I had a love for sin in my heart, and I was doing sin secretly. यद्यपि मेरा बाहरी जीवन ठीक था, पर मेरे हृदय में पाप के लिए एक प्रेम भी था और मैं गुप्त रीति से पाप कर रहा था। It went on for quite some time till one day one person gave to me 2 articles of Charles Finney. और ये काफी समय तक मेरे जीवन में ये चलता रहा, जब तक कि एक दिन एक भाई ने मुझे 2 चार्ल्स फिनी द्वारा लिखे हुए लेख जो थे उनको मुझे दिया। One article is true repentance and false repentance. The other is true conversion and false conversion. एक था सच्चा मन फिराव, झूठा मन फिराव, और दूसरा था सच्चा नया जन्म और झूठा नया जन्म। I remember while I was reading that sin, deep conviction of sin came to my heart. मुझे अभी याद है कि जब मैं उसे पढ़ रहा था तो एक बहुत ही गहरे तौर पर पाप मैं कर रहा हूँ इसका महसूस मुझे होने लगा मेरे हृदय में। The conviction of sin was so deep. I remember I was alone in the room, and the verse that came to my heart that day is Proverbs 28:13. और पाप का वो जो एक मुझे बोझ जैसा जो मुझे महसूस हो रहा था वो इतने गहराई से मेरे हृदय में आया, और उस दिन मुझे एक वचन याद आया, वो है नीति वचन 28 और उसका 13। He who conceals his sin will never prosper. He who confesses and forsakes them will find mercy. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। I remember that day I was confessing each sin, one sin after other, and said, Lord, I forsake it forever. उस दिन मुझे याद है कि मैं अपने पापों का अंगीकार कर रहा था, एक के बाद एक पाप मैं कबूल करके कह रहा था, प्रभु मैं हमेशा के लिए इन्हें छोड़ देना चाहता हूँ। I remember the Holy Spirit was reminding me of more and more sins which I did, and I said, Lord, I forsake it forever. That I did, Lord. That is my sin. I am responsible. Lord, I forsake it forever. और मुझे याद है पवित्र आत्मा और भी मेरे पाप मुझे याद दिला रहा था, और हर एक पाप को मैं कबूल करता था। हाँ प्रभु, ये मेरा पाप है, इसके लिए पूरी तरीके से मैं जिम्मेदार हूँ और मैं हमेशा के लिए इसे छोड़ना, इसे त्यागना चाहता हूँ। And as I was doing that, I saw that my heart became so light, so free. और जैसे मैं ये करने लगा, मैंने देखा मेरा हृदय जो है इतना हल्का और इतना स्वतंत्र महसूस करने लगा। Tremendous joy of salvation filled my heart. और एक उद्धार का बहुत बड़ा आनंद जो है उसने मेरे हृदय को भर दिया। I remember that day, literally I was jumping with joy because I knew that it's almost like a big burden fell off from my heart. और उस दिन मुझे अब भी याद है कि मानो मैं आनंद के लिए कूद रहा था, क्योंकि मानो एक बहुत बड़ा बोझ मेरे हृदय से निकल चुका था। See, my life before that was, it's like, even though I had almost everything in life, morning when I get up, it's like, oh, when will evening come? When evening comes, when will morning come? It's like life was a difficult thing to go about.
और उस समय यद्यपि मेरे पास सब कुछ था, मेरा जीवन इस प्रकार था कि जब मैं सुबह उठता था मुझे लगता था कि शाम कब हो जाएगी, और जब शाम होता था मुझे लगता है सुबह कब होगी, और मेरा जीवन में उसमें बिल्कुल मुझे कोई दिलचस्पी मानो नहीं थी। And that day, everything has become so different. और उस दिन से सब कुछ बिल्कुल मेरे लिए नया हो गया। Tremendous joy of salvation filled my heart, and I know that that joy is there even today in my heart. एक आनंद, एक अद्भुत उद्धार का आनंद मेरे हृदय को उसने भर दिया, और वो उद्धार का आनंद आज भी मेरे हृदय में है। Uh, if you ask me when I was really born again, I don't know whether it's on that day or sometime before, but it's something like maybe I never turned 180-degree before that, but that day my turning was absolutely complete. It's 180-degree turn. और अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा नया जन्म कब हुआ, या वो उस दिन था या उसके पहले था, तो मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि उस दिन से पहले मैं पूरी तरीके से पीछे नहीं मुड़ा था। वो 180 डिग्री से मैं पीछे नहीं मुड़ा था, उस दिन मैं पूरी तरीके से मुड़ चुका था। See, the sad thing about many Christians is that they have not turned a full 180-degree. Many of them have turned 120-degree, 140-degree, 110-degree. That is what happens is you will never have that real joy of salvation then. और कई मसीहों के साथ होता ये है कि वो पूरी तरीके से पीछे नहीं मुड़ते, वो 120 डिग्री, 140 डिग्री, 110 डिग्री से ही वो पीछे मुड़ते हैं। और अगर ऐसा है तो आप में कभी वो उद्धार का आनंद जो है वो पूरी तरीके से आपके हृदय में नहीं होगा। I was thinking about this. My life was something like this. What is written in Mark chapter 8? Jesus healed a blind man. और मेरा जीवन इस प्रकार था, जैसे मरकुस 8 में लिखा है, जहाँ यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया। Jesus spat and put that mud, spat on the ground and put that mud on in that person's eye. और मरकुस 8:23 में यीशु मसीह ने उस थूक कर उस पर हाथ रखा और उस व्यक्ति की आंखों पर हाथ रखा। And that person said, how you're seeing, that person said in verse 24, I see men like trees walking. और जब यीशु ने उससे पूछा कि क्या तुझे क्या दिख रहा है, तो उस व्यक्ति ने 24 वचन में, मरकुस 8:24 में जवाब दिया कि मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। That was my condition. I can say there is something before that particular day. That was my condition. I had some sort of vision, but the vision was not proper. ये मेरी अवस्था थी। मैं कह सकता हूँ मानो उस दिन के पहले मैंने थोड़ा बहुत तो मैं देख पा रहा था, पर मेरी जो दृष्टि थी वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक नहीं थी। So Jesus had to touch that man one more time. और यीशु मसीह को उस व्यक्ति को एक और बार छूना पड़ा। We can see in verse 25, he put his hand on his eye again and made him look up. हम 25 वचन में देखते हैं, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा और फिर उसे ऊपर देखने कहा। And he was restored and saw everything clearly. और वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। I was thinking in my life, that was the story. Jesus had to touch me a second time. Only then my vision was truly restored. और मैं सोच रहा था कि ये मेरे जीवन की कहानी है। यीशु मसीह को दूसरे बार मुझे छूना पड़ा, केवल तब ही मेरी दृष्टि जो है पूरी तरीके से चंगी हो गई। See, I want to tell you that as long as that particular foundation of our Christian life is not proper, we will have struggle all through our life. मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक कि हमारे मसीह जीवन की ये नींव सही से नहीं डाल दी जाती, हमारे पूरे जीवन भर हम संघर्ष ही करते रहेंगे। See, if you're building a tower and if the foundation is not proper, by the time you reach second floor, third floor, great cracks are going to occur in that building. अगर आप कोई बहुत बड़ी इमारत बना रहे हो, कोई मीनार बना रहे हो, और अगर आपकी नींव ही सही नहीं है, तो जब तक आप तीसरे मंजिल, चौथे मंजिल तक पहुंचोगे, तब तक बहुत बड़े बड़े एक क्रैक्स आपके इमारत में दिखने लगेंगे। See, if you are building a tower, you need not have to do anything in the 7th floor and 8th floor. The real thing you have to do is you have to have a real proper good foundation.
जब आप कोई मीनार बनाते हो तो उसके 7वें मंजिल पर 8वें मंजिल पर आपको बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे मीनार के लिए आपको उसकी नींव जो है उस पर बहुत कड़ी मेहनत लेकर उसे अच्छे से बनाना है। That is why in every person's life, repentance is such an important thing. इसी वजह से हर एक व्यक्ति के जीवन में मन फिराव ये इतना महत्वपूर्ण एक विषय है। I know in my life, repentance was not proper before that. So I was, throughout the life, I was struggling. I never knew how to come out of it. मैं जानता हूँ मेरे जीवन में इससे पहले मन फिराव सही नहीं था, इसलिए मेरा इतना बड़ा संघर्ष था, मैं उससे बाहर नहीं उभर पा रहा था। But by God's mercy, God gave me that day a good foundation. And after that, the further building up was very easy. और परमेश्वर की दया में उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी एक सही नींव दी और उसके आगे निर्माण करना बहुत आसान हो गया। Let's look at this verse in 2 Corinthians chapter 7. आइए हम इस वचन को देखेंगे, दूसरा कोरिन्थ उसका 7वां अध्याय। That was a verse that really touched my heart that particular day. और उस दिन उस वचन ने मेरे हृदय को छू लिया। 2 Corinthians 7 verse 10. दूसरा कोरिन्थ 7:10। Godly sorrow produces repentance. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। Well, let's go very slowly. What is the thing that produces repentance? आइए हम बहुत धीरे धीरे इसे पढ़े। वो क्या है जो मन फिराव या पश्चाताप को उत्पन्न करता है? That verse very clearly says, godly sorrow produces repentance. वो वचन बिल्कुल साफ साफ हमें बताता है परमेश्वर भक्ति ही मन फिराव को या पश्चाताप को उत्पन्न करता है। I remember that day I was weeping for my sins, one sin after other. I was weeping and forsaking forever, and that is the thing that produced repentance in my life. मुझे याद है उस दिन मैं अपने पापों के लिए विलाप कर रहा था, शोक कर रहा था, एक के बाद एक पाप के लिए मैं रो रहा था और उसी बात ने मेरे जीवन में मन फिराव लाया। See, many people do not have godly sorrow because they do not view sin as God views it. कई लोगों के जीवन में परमेश्वर भक्ति का शोक नहीं होता क्योंकि वे पाप को उस नजरिए से नहीं देखते, उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से प्रभु परमेश्वर उसे देखता है। See, we know that anger before God's eye is equal to murder. हम जानते हैं कि परमेश्वर की आंखों में गुस्सा ये खून करने के या हत्या करने के बराबर है। If I get angry with 3 people in the morning, it's equal before God as if I killed 3 people. अगर मैं सुबह 3 लोगों से गुस्सा होता हूँ, क्रोधित होता हूँ, ये परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल ऐसा है मानो मैंने 3 लोगों की हत्या की है। If I lusted at 2 women, it's equal to committing adultery with 2 women. अगर मैंने दो स्त्रियों के साथ लालसा की, उन पर कुदृष्टि रखी, तो वो इसके बराबर है कि मैंने एक दिन में 2 स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। If you look into God's word very, very clearly says how God views each and each sin. अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो हम बिल्कुल साफ तौर पर देख पाएंगे कि परमेश्वर हर एक पाप को किस प्रकार से, किस नजर से देखता है। Bible says Satan is the father of lies. परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। See, one child cannot be produced by father alone. एक जो बच्चा है वो केवल पिता उत्पन्न नहीं कर सकता। There has to be a mother for a child to be born. एक बच्चे का जन्म होने के लिए माता की होने की भी आवश्यकता है। See, if lie is the child and the father is Satan, who is the mother? अगर झूठ ये संतान है, ये बच्चा है, और अगर उसका पिता शैतान है तो फिर माँ कौन है? Mother is the person who lies. वो माँ वो व्यक्ति है जो झूठ कहता है, झूठ बोलता है। So if I tell a lie, it is equal to getting married with devil. और इसलिए अगर मैं झूठ कहूं तो ये बिल्कुल इसी के बराबर है कि मैंने शैतान से विवाह कर लिया है। And a child is born, and that child is lie. और एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा ही झूठ है। There are so many instances in the Bible how God views sin. बाइबल में ऐसे कई घटनाएं हैं जहां हम देख पाते हैं परमेश्वर पाप को किस नजर से देखता है। You know, Ananias and Sapphira, they went to God's presence and did hypocrisy without opening the eye, without opening the mouth, and both fell dead before God.
हम जानते हैं कि हनन्याह और सफीरा ये परमेश्वर के उपस्थिति में गए और उन्होंने अपने जीवन से पाखंड किया बिना अपना मुंह खोले, और दोनों के दोनों परमेश्वर के सामने मर गए। See, I want to tell you that if you, we know God's word is like a mirror. When the mirror is proper, and when I see my face in God's word very clearly, I see, Lord, I'm such a terrible sinner. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन एक आईने समान है, और जब हम इस आईने में साफ साफ देखते हैं, तब हम बिल्कुल स्पष्टता से देख पाएंगे कि प्रभु, मैं बहुत ही बदतर, बहुत ही बुरा पापी हूँ। But mirror cannot clean my face. For that, I have to go to for cleansing. I have to go to Jesus. पर आप जानते हो कि एक आईना जो है वो हमारे चेहरे को साफ नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे यीशु के सामने, मुझे परमेश्वर के सामने जाने की आवश्यकता है। This verse very clearly says, godly sorrow produces repentance. और इसलिए ये वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि परमेश्वर भक्ति का शोक या ईश्वरीय शोक मन फिराव या पश्चाताप उत्पन्न करता है। And then is written, not to be regretted. और फिर वो लिखता है कि उससे पछताना नहीं पड़ता। In other words, the decision to repent and turn to God, the person will never regret that decision ever in his life. दूसरे शब्दों में, मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ना, इस निर्णय के बारे में उस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन भर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। And then is written, but the sorrow of the world produces death. और उसके आगे लिखा है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। What is the meaning of sorrow of the world? इस संसार का शोक, इसका क्या मतलब है? People don't understand me. People are cruel to me. All types of self-pity. That is the worldly sorrow. लोग मुझे समझते ही नहीं, लोग मुझसे कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये सारे प्रकार के जो खुद पर तरस खाना है, ये है इस संसार का शोक। My husband don't understand me. My wife don't understand me. My children don't understand me. All types of self-pity that it's written that will produce death. मेरा पति मुझे नहीं समझता, मेरे पत्नी मुझे नहीं समझती, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, ये सब कुछ जो है ये इस सांसारिक शोक है। हर एक बात जिसमें हम खुद पर तरस खाते हैं वो सांसारिक शोक है, और ये केवल मृत्यु ही उत्पन्न करेगा। That means separation from God. इसका मतलब परमेश्वर से अलग होना, अलगाव, परमेश्वर के साथ अलगाव। Then in verse 11 says, what are the fruits of godly repentance? और फिर 11वें वचन में बताया गया है कि ईश्वरीय मन फिराने का जो फल क्या है। For we observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner, what diligence it produced in you. अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह उसमें उत्पन्न हुआ। But what is the first fruit of godly repentance? There will be a real diligence for God. और पहला फल क्या है अगर हमारे हृदय में ईश्वरीय दुख और मन फिरा हुआ, तो कि परमेश्वर के लिए एक मानो उत्साह, एक लगन हमारे हृदय में होगा। There will be tremendous diligence to live for God and serve God. एक बहुत बड़ा उत्साह कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं और परमेश्वर की सेवकाई करूं। What clearing of yourself. Verse 11. और उसका 11 वचन, और क्या ही प्रत्युत्तर, या इंग्लिश में लिखा है कि तुमने किस प्रकार अपने आप को सिद्ध किया। Yeah. What indignation. That means what tremendous hatred to sin. और किस प्रकार का रीस, या दूसरे शब्दों में कहे तो पाप के प्रति एक बहुत ही तीव्र घृणा या I want to नफरत। tell you that is a very clear sign of genuine repentance. मैं आपको कहना चाहता हूं, वास्तविक और असली मन फिराव का ये बिल्कुल एक साफ साफ चिन्ह है। If a person loves sin, repentance is not proper in his life. अगर एक व्यक्ति पाप से प्रेम करता है तो उसके जीवन में मन फिराव सच्चा नहीं है, सही नहीं है। Genuine repentance produces hatred to sin. सच्चा मन फिराव जो होता है वो पाप के प्रति नफरत और घृणा को उत्पन्न करेगा। Then is written what fear, that is what fear of God. और फिर लिखा है क्या ही भय, इसका मतलब परमेश्वर का क्या ही भय उत्पन्न हुआ। Not that God will do any harm to me, but it produces a love to God that I hate sin. I hate to do sin even for one time. ये भय नहीं कि परमेश्वर कहीं मुझे चोट पहुंचाएगा क्या, पर परमेश्वर के लिए एक ऐसा प्रेम, और वो प्रेम ये उत्पन्न करेगा कि मैं परमेश्वर को एक बार भी चोट नहीं पहुंचाना चाहूंगा। Then see what is written, what vehement desire, what zeal.
और उसके आगे लिखा है और लालसा और धुन। What vehement desire means a tremendous desire for Jesus Christ. और लालसा या एक तीव्र लालसा का मतलब है यीशु मसीह के लिए एक तीव्र लालसा, एक इच्छा होना। What zeal for God. और परमेश्वर के लिए क्या ही धुन होगी। What vindication. और दंड देने का विचार। In all this, you proved yourself to be clear in this manner. तुमने सब प्रकार में ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। I want to tell you, every heart of man, I think it's Madam Gayon or somebody who said, it's like a balloon filled with hydrogen air. और मैडम गुयोन ने शायद ये कहा था कि हर एक मनुष्य का जो हृदय है वो एक गुब्बारे की तरह है जिसमें वो हाइड्रोजन की हवा भरी हुई है। But the sad thing is, this balloon is tied to the earth with 10 strings. पर ये दुख की बात ये है कि ये जो गुब्बारा है ये इस धरती से बंधा हुआ है, उसको 10 रस्सियों से मानो बांध कर रखा है। Imagine you cut 9 or 8 of all these ropes. और ये जो 10 रस्सियां उसे बंधी हुई है, अगर उसमें से 8 या 9 को हम काट दे तो See, this is what happens in many Christians' life. Their repentance is not 180 degree. They have not cut all the 10 ropes. They have cut maybe 8 or 9. और 140 degree turn, 150 degree turn, but still the balloon is right down on the earth. और कई मसीहों के जीवन में बिल्कुल यही होता है कि उन्होंने वो सारी जो रस्सियां हैं नहीं काटी है, उन्होंने शायद 8 या 9 रस्सियां काट दी है, मानो वो 140 डिग्री पीछे मुड़ गए, 150 डिग्री पीछे मुड़ गए, पर पूरी तरीके से वे पीछे नहीं मुड़े और उसका परिणाम यह है कि अब भी वो इस पृथ्वी से बंधे हुए हैं। And I want to tell you, such people will struggle all through their life. और मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे लोग अपने पूरे जीवन भर संघर्ष ही करते रहेंगे। You really want absolute salvation? अगर आप सचमुच, क्या आप वाकई में पूरा पूरा उद्धार चाहते हो क्या? Cut that last rope also. वो जो आखिरी रस्सी है उसे भी काट दो। You know what will happen when all the 10 ropes are cut? क्या आप जानते हो क्या होगा जब सारी 10 रस्सियां काट दी जाएगी? That balloon would shoot to heaven. वो जो गुब्बारा है वो आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर वो दौड़ा जाएगा। I want to tell you, every man's heart is like that. मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर एक मनुष्य का हृदय ऐसा ही होता है। Unless repentance is 180 degree, you are right down on the earth. जब तक कि मन फिराव पूरा 180 डिग्री ना हो, आप इस पृथ्वी पर ही रहोगे। I want to encourage you, cut even the last rope. मैं आपको Your heart will shoot to heaven. You will really hate sin and love God. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ उस आखिरी रस्सी को भी काट दीजिए। आपका जो हृदय है वो स्वर्ग की ओर जाएगा। आप सचमुच पाप से नफरत करने लगोगे और परमेश्वर से प्रेम करने लगोगे। The sad thing is, many people's consecration is 98%, 99%, not 100%. और दुख की बात यह है कई लोगों का जो समर्पित होना है वो 98% है, 99% है, पर 100% नहीं है। Their heart will be struggling. It will never be filled with the joy of the Lord. उनका हृदय निरंतर संघर्ष ही करता रहेगा, वो कभी परमेश्वर के आनंद से भरपूर ना होगा। See, I heard of a story. This just not a real story, but it tells you a tremendous truth. और मैंने एक कहानी सुनी, ये कोई सच्ची घटना नहीं है, पर ये हमें एक बहुत बड़ा सत्य बताती है। See, in one big city, all the house rents are like 25,000, 30,000 and so on. एक बड़े शहर में वहाँ जो किराया है किसी घर का वो 25,000, 30,000 ऐसा किराया है। And one family heard that one house the rent is only 2,000 rupees. और किसी एक परिवार ने सुना कि एक विशेष घर है जिसमें केवल 2,000 ही किराया है। And that family came to that place as they saw that house. It is a very nice house. और वो परिवार उस जगह पर आया, उन्होंने उस घर को देखा, वो बहुत अच्छा घर था। And then he asked, what is the reason why every other house it's 25,000, 30,000? Why this house is alone just 2,000 rupees? और फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कि इस जगह में हर एक घर जो है 25,000, 30,000 किराया लेते हैं, आप ही का घर है जो केवल 2,000 किराया लेता है। See, he said, you can take this house, but there is one condition. और उन्होंने कहा कि नहीं, आप घर तो ले सकते हो पर एक शर्त है। That condition is, see, in the front room
at the top I've kept one nail. और वो शर्त ये है कि सामने वाला जो कमरा है उसके ऊपर मैंने एक जो है खिला रखा है। You can own the entire house, but that particular nail belongs to me. और पूरा घर जो है वो तुम्हारा होगा, पर वो जो एक कील है वो मेरा होगा। If you can agree with that condition, then you can take the house. अगर इस शर्त को मान लो तो फिर ये घर तुम्हारा हुआ। He agreed, okay, that one nail, if that person owns, what does it mean? That's okay. And the other house is mine. So he agreed to take that house. और उसने उस शर्त को मान लिया और उसने कहा अच्छा एक कील उस व्यक्ति का हुआ, बचा हुआ घर तो मेरा है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, और उसने वो घर ले लिया। So after he started staying, after 1 week, what happened is, और जब वो वहां रहने लगा, एक हफ्ते बाद ये हुआ, that owner came knocking at the door, वो जो मालिक है वो घर खटखटाने लगा, and he said, see, I told you that nail belongs to me. और उसने कहा देखो वो जो ऊपर कील है वो मेरा है। He said, yes, we agreed for that. और उसने कहा हाँ, हम तो इससे राजी हो चुके थे। So I'm going to use that nail now. और फिर उसने कहा अब मैं इस कील का इस्तेमाल करूंगा। What he did is he brought a dead dog and hanged on that nail. और उसने ये किया कि एक मरा हुआ कुत्ता लाया और उस कील पर लटका दिया। And you know what will happen if one dead dog is, you cannot stay, it's terribly smell. और आप जानते हो क्या होगा अगर कोई मरा हुआ कुत्ता किसी कमरे में होगा, तो बहुत बदतर एक दुर्गंध होगी, आप वहां रह नहीं पाओगे। So that they just managed to live like that. But after 2-3 days, he brought a dead cat and began to hang there. और फिर वो कैसे वहां रहने लगे, और 2-3 दिन बाद वहां वो उस एक मरी हुई बिल्ली लेके आया। See, in the end, they had to just go away from that house. और आखिर में उन्हें वो घर छोड़कर जाना पड़ा। See, this story teaches us that we can give devil just one nail space. That means 99% to God, 1% belongs to me. This is what will happen in my Christian life. और ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम शैतान को शायद एक कील इतनी ही जगह देंगे, मतलब 99% परमेश्वर का है, पर एक कील शैतान को देंगे, पर फिर हमारे जीवन में ये होगा। I want to tell you, he will play havoc in your Christian life. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके पूरे मसीह जीवन को बिगाड़ कर रख देगा। If you want to live for Christ, live totally for him. Otherwise, you are a lukewarm Christian. अगर आप मसीह के लिए जीना चाहते हो तो पूरा मसीह के लिए जियो, नहीं तो आप बिल्कुल एक गुनगुने ऐसे मसीही हो। We know what Jesus told the Laodicean church. हम जानते हैं यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को क्या कहा। Jesus said, you are neither hot nor cold. You are lukewarm. I'm going to speak to you out of my mouth. और यीशु ने कहा तू ना तो ठंड है ना तो गर्म है, तू गुनगुना है, और इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे उगल दूंगा। See, if we are lukewarm, not giving a full to Jesus Christ, a small spot we are keeping for ourselves, I want to tell you, you are lukewarm. Your Christian life will be miserable. Jesus will speak to you out of his mouth. अगर हम गुनगुने हैं, हम पूरी तरीके से यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दे रहे हैं, तो हम गुनगुने रहेंगे और यीशु मसीह अपने मुंह से हमें उगल देगा। I want to just show this verse in 1 John chapter 5. और पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में ये एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Written 3 conditions of a person who is genuinely born again. एक व्यक्ति जिसका वास्तविकता में नया जन्म हुआ है, उसके तीन क्या अवस्था होगी, शर्तों के बारे में लिखा है। 1 John chapter 5:18. पहला यूहन्ना 5:18। It's written, we know that whoever is born of God does not sin. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। The meaning of it is he does not deliberately live in sin. इसका अर्थ ये है कि वो जानबूझकर पाप में ही नहीं जीता रहता। In other words, such a person will not practice sin. दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में पाप नहीं करता रहेगा। The best example we have heard many times from Razak for this verse is the example of a pig and a cat. और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण जो हमने कई बार भाई जैक से इस संदर्भ में सुना है, वो है एक बिल्ली और एक सूअर के उदाहरण का। Just imagine you are taking a pig in a road. Both sides is filled with muck. और कल्पना करके देखिए कि आप एक सूअर को एक रास्ते पर, एक सड़क पर ले जा रहे हो और जहां दोनों तरफ से पूरी गंदगी है।
what will that pig do? He'll go to that uh, dirt and he'll roll there. He'll love it. और वो सूअर क्या करेगा? वो उसी गंदगी में जाएगा, वो उसी गंदगी में खेलेगा और उसे वही पसंद आएगा। But just imagine you are putting a chain on that pig and taking on the same road. पर अगर उसी सूअर को आप जंजीरों में बांधकर उसी सड़क पर ले जाओ तो Whenever he goes to that dirt, you're pulling it. जब कभी वो उस गंदगी के पास जाए आप उसको खींच लेते हो। You can take the pig in the same road till the end, but that pig is clean. उसी सड़क के अंत तक आप उस सूअर को ले जाओ, वो सूअर जो है बिल्कुल साफ होगा। You know what is that? That chain. That chain is the law. और क्या आप जानते हो वो जंजीर, वो चेन क्या है? वो है व्यवस्था। We can hear the law, and that law can pull us. Just because of that, we can remain clean. Sorry uncle, the last part. We can in our life, a person may be like a pig, but the law is controlling him and keeping him clean. और हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि वो व्यवस्था हमें साफ रखे हुए है, पर वो व्यवस्था हमें नियंत्रित करके साफ रख रही है। But just imagine you are taking a cat in the same road. पर सोचकर देखिए, आप एक बिल्ली को उसी सड़क पर ले जाओ तो see, there is no need for chains. फिर चेंज की you need not have to have any chains on him. You can take the cat through the same road. He will remain clean till the end. फिर जंजीरों की आपको कोई आवश्यकता नहीं, बिल्ली को आप उसी सड़क पर ले जा सकते हो, वो उस सड़क के अंत तक साफ ही रहेगा। See, what is the reason? The reason is because there is a transformation. It's like a change. A true Christian born again experience is a miracle where a person is turned from a pig to become a cat. इसका कारण क्या है? उसका उत्तर है एक रूपांतरण। सच्चा मसीही जीवन ये है कि एक व्यक्ति जब मसीही बन जाता है तो उसके अंदर एक रूपांतरण होता है, वो सूअर होकर भी वो एक बिल्ली में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। It's a really supernatural work where God does a miracle. ये एक परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला काम है जहां परमेश्वर एक चमत्कार करता है। You can see what is written next. The person who is born of God keeps himself. Verse 18, 5:8. और हम देखते हैं अगली बात जो लिखी है, जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ है वो अपने आप को बचाए रखता है। It's like a cat which is all the time wants to be clean. ये एक बिल्ली समान है जो निरंतर हर समय साफ होना चाहती है। Do you think that any dirt will come on the cat? Surely it will come. क्या आपको लगता है कोई गंदगी उस बिल्ली पर आएगा? जरूर होगा। But it will lick and clean it. पर वो अपने आप को चाट कर अपने आप को तुरंत वो साफ कर लेगी। In our house we have got a male cat. और हमारे घर में एक बिल्ली हमारे पास है। We can see there is absolutely no dirt on that cat, but it's all the time licking. और हम देखते हैं उसके ऊपर हमें कोई गंदगी नहीं दिखती, उसके बावजूद वो अपने आप को चाट रहा होता है। See, that is the mark of a true Christian. He wants to be clean. There is no desire for it to have any dirt in his body. एक सच्चे मसीही का ये चिन्ह है कि वो साफ होना चाहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि अब उसके जीवन में उसके शरीर में थोड़ी भी कहीं कोई गंदगी हो। Will dirt come on him? Yeah, it may come, but he wants to make sure that it's clean, quick and fast. क्या उस पर धूल या गंदगी आएगी? जरूर आएगी, पर वो निश्चित होना चाहता है कि वो तुरंत उससे साफ हो जाए। And it's written last, wicked one does not touch him. और 18 वचन में अंतिम बात लिखी है कि वो दुष्ट जो है उसे छूने नहीं पाएगा। Devil has got no power in such a person's life. ऐसे व्यक्ति के जीवन पर शैतान का कोई सामर्थ्य नहीं है। We might have heard of that example of Noah's Ark. हमने नूह के जहाज के उस उदाहरण को सुना होगा। Noah sent 2 birds out of his ark. नूह ने 2 पक्षियों को अपने जहाज से बाहर भेजा। One is a crow, the other is a dove. एक कौवा था और दूसरा कबूतर था। You know what happened? The dove returned back to that ark very fast. हम जानते हैं क्या हुआ। वो जो कबूतर है वो बहुत ही जल्द फिर एक बार उस जहाज में लौट आया। But that crow, when it went out, it never returned. पर जब वो कौवा गया तो बाहर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आया।
The reason is because outside it's full of non-veg food. It is the crow knows inside the ark he will only get some grains. और उसका कारण ये है कि कौवा जानता था कि बाहर उसको जो है मांस खाने को मिलेगा, पर अगर वो जहाज में वापस आए उसको बस थोड़े कोई दाने मिलेंगे खाने के लिए। Something like outside it's tremendous enjoyment. Inside what you will get nothing. इसका मतलब ये है कि बाहर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मनोरंजन मिलेगा, आनंद मिलेगा, पर अंदर कुछ नहीं मिल रहा। But dove is completely different. He wants to be inside. Outside there is nothing for him which is attractive. पर कबूतर के लिए ये बिल्कुल विपरीत है, वो अंदर होना चाहता है, बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसे आकर्षित कर सके। And brother Zach was telling this is how two people go out from the church. और भाई जैक बता रहे थे कि सच्चे लोग, सच्चे मसीह कलीसिया से इस प्रकार जाते हैं। One person sees outside tremendous opportunity and tremendous attractiveness. एक व्यक्ति बाहर जाकर देखता है क्या अद्भुत मौका है और उसके बहुत ज्यादा आकर्षण बाहर दिखता है। But the true Christian, he loves fellowship. He loves the fellowship with the brothers and sisters. पर सच्चा मसीही जो है भाइयों बहनों के साथ संगति उसे बहुत ज्यादा पसंद है, वो उससे प्रेम करता है। Just see this verse in Romans 6:1. और रोमियो 6:1 में हम इस वचन को देखते हैं। Question is asked, a simple question, shall we continue in sin? यहाँ एक प्रश्न किया गया, एक साधारण प्रश्न है, क्या हम पाप करते रहे? And verse 2, the answer is may never be. और दूसरे वचन में उत्तर दिया है कदापि नहीं। And that is the answer of a true, genuine Christian. और एक सच्चे वास्तविक असली मसीही का यही उत्तर है। See, he is not telling that sin will never come to me. No, that no man can say till he lives on the earth. वो ये नहीं कह रहा कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा, ये कोई मनुष्य तब तक नहीं कह सकता जब तक वो इस पृथ्वी पर है। But the question is, do you want to sin? पर प्रश्न ये है, क्या तुम पाप करना चाहते हो? Genuine believer's answer is may never be. एक सच्चे वास्तविक मसीही का उत्तर यही है, ऐसा कभी नहीं हो, कदापि But नहीं। I don't want to sin even once in my life. That is my desire. प्रभु, मैं अपने जीवन में एक बार भी पाप नहीं करना चाहता, ये मेरी लालसा है। I want to, my desire for every one of you who hear these words is this, that all of you should have an absolute assurance of salvation in your life. मेरी आप में से हर एक के लिए जो इन वचनों को सुन रहा है, इच्छा यही है कि आप में से हर एक के जीवन में उद्धार का एक पूर्ण आश्वासन हो। If somebody asks me, are you married? There is, I'm not saying 99%. No, I know 100%. In the same way, everyone should be 100% sure of his salvation. अगर कोई मुझसे प्रश्न करता है कि आप विवाहित हो, तो मेरे हृदय में कोई संदेह नहीं है। मैं ये नहीं कहता 99%, मैं 100% कहूंगा हाँ, बिल्कुल वैसे ही हमारे हृदय में उद्धार का पूर्ण एक आश्वासन होना चाहिए। See, if you don't have that assurance, I want to give you one verse. अगर वो उद्धार का आश्वासन आपके हृदय में नहीं है, फिर मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। It's written in 1 John chapter 5 verse 14 and 15. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15 वचन में वो लिखा गया है। Written, this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. और हमें वहां लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। So ask Jesus, Lord, give me the assurance of salvation. और इसलिए यीशु से मांगे कि प्रभु मुझे उस उद्धार के आश्वासन को दीजिए। And then see verse 15. और फिर 15 वचन को देखें। If we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we've asked of him. जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। See, if you really ask in God's will, it is 100% sure God will give you the assurance of salvation in your heart. अगर आप परमेश्वर की इच्छा में कुछ भी मांगते हो तो ये 100% निश्चित है कि परमेश्वर आपको आपके हृदय में उद्धार का पूर्ण आश्वासन देगा। If you ask for a car or bungalow, I don't know, that is God's will. अगर आप कोई गाड़ी या बंगलो मांगो तो मैं नहीं जानता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। But salvation, if you ask for assurance of salvation, he will definitely give. पर उद्धार या उद्धार के आश्वासन के लिए आप मांगो तो वो निश्चित आपको देगा। See, a person who is genuinely born again is absolutely sure he will go to heaven. एक व्यक्ति जिसका वास्तविकता में नया जन्म हो चुका है, वो पूर्ण तौर पर निश्चित है कि वो स्वर्ग में जाएगा। See, last week I told you the story of John Wesley and Charles Wesley before their conversion.
going in a ship to USA. और पिछले हफ्ते मैंने आपको कहानी बताई थी चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली के, उनके नए जन्म होने से पहले जब वे एक जहाज पर यूएसए में जा रहे थे। They faced a terrible storm and the ship was about to sink. और एक बहुत बड़ा वहां आंधी आई और वो जो जहाज है वो डूबने लगा। Everybody, including John Wesley and Charles Wesley, they were screaming and shouting and don't know, because they thought that they are going to die. वहां सब के सब व्यक्ति, जिसमें जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली भी शामिल थे, वे चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें लगा वे मरने वाले हैं। There were 7 Moravian missionaries there. They were calm, they were singing and praising God. 7 मोरेवियन वहां मिशनरीज थे जो बिल्कुल शांत तौर पर वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे। See, that was the incident that led these two people's conversion to Jesus. ये वो घटना है जिसने इन दो लोगों को मसीह के पास लाया। See, I want to tell you, when you face death, that time it becomes very clear whether you are a genuine Christian or not. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मृत्यु का सामना करते हो उस समय ये बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आप एक सच्चे मसीही हो या नहीं। If you are a genuine believer, death will have no power on your life. अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो मृत्यु का आपके जीवन पर कोई सामर्थ्य नहीं होगा। Because you will be sure, Lord, I am going to go to my Father's presence. क्योंकि आप निश्चित होंगे कि प्रभु, मैं अपने पिता की उपस्थिति में जाने वाला हूँ। I want to tell you my wife's testimony. मैं आपको अपने पत्नी की गवाही बताना चाहता हूँ। Some 5 or 6 years ago, my wife had a very serious operation. 5 या 6 साल पहले मेरे पत्नी का एक बहुत ही सीरियस ऐसा उसका ऑपरेशन होने वाला था। There was a tumor in her brain. उनके ब्रेन में एक ट्यूमर, एक गांठ थी। It was a non-cancerous tumor. उसमें कोई कैंसर नहीं था, वो ऐसी गांठ, ऐसा ट्यूमर था। But it had to be removed. पर उसे निकालने की आवश्यकता थी। But it was a very serious operation. पर वो जो ऑपरेशन था वो बहुत ही गंभीर था। So the previous day, we were in Chennai. The previous day, many relatives came to see her. और उसके पहले दिन, ऑपरेशन के पहले दिन हम चेन्नई में थे, कई हमारे रिश्तेदार उसे मिलने आए। But they were wondering, I mean, this girl has no fear at all. They asked her, you have no fear at all. It seems as though you are there's no fear in your face or in your conduct. और वे बिल्कुल अचंभित हो गए कि इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वे उससे पूछने लगे कि ऐसा कैसे कि तुम्हारे चेहरे पे कोई डर नहीं है, तुम्हारे बर्ताव में हमें कोई भी डर नहीं क्यों नहीं दिख रहा। No, she said that I know that when operation is there, God will be with the doctors. और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि जब मेरा ऑपरेशन होगा तो परमेश्वर जो है उन डॉक्टर्स के साथ होगा। But if at all I'm going to die, I'm going to go to my Father's presence. पर उसने कहा, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं अपने पिता की उपस्थिति में जाऊंगी। That is the confidence of a true believer. एक सच्चे विश्वासी का ये हियाव होता है। We know what happened to Stephen when he was facing death. His face was like the face of an angel. हम जानते हैं स्तिफनुस के साथ हुआ, जब वो मृत्यु का सामना कर रहा था तो उसका जो चेहरा था वो मानो स्वर्गदूत जैसा बन गया। And he was praying, Lord, forgive these people who are stoning him. और वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, जो लोग मुझ पर पथराव कर रहे हैं उनको क्षमा कर। And all these things Saul was watching. और ये सारी बातें शौल जो है वो देख रहा था। It was a big question mark. How is these Christians dying like this? He has persecuted so many Christians. And how is that these people are dying like this? This is a big question mark in his, even though he was so zealous for Jewish religion, he saw something which is absolutely different in this Christian's life. और एक बहुत बड़ा प्रश्न पौलुस के शाऊल के सामने ये था कि उसने इतने मसीहों का सताव किया था, कैसे इनका मृत्यु के प्रति एक ऐसा रवैया है, इन्हें कोई डर नहीं है। यद्यपि वो यहूदी जो धर्म था उसके लिए बहुत धुन रखने वाला था, उसने कुछ अलग देखा इन मसीहों में। When he was traveling to Damascus, that was the question mark in his heart. There is something in these people's life, but he was resisting that. जब वो दमिश्क के मार्ग पर निकला हुआ था तो यही प्रश्न उसके हृदय में था कि इन मसीहों में कुछ तो अलग है, पर वो इस बात का अपने हृदय में ही विरोध भी कर रहा था। That is when God appeared to him. Jesus Christ appeared to him. उसी समय यीशु मसीह उसे प्रकट हुआ। You know what Jesus told him? It is difficult for you to fight against these goats.
क्या आप जानते हो यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने कहा, ये जो कील है इसके विरुद्ध लड़ना तेरे लिए मुश्किल है। See, goads are sharp object, और ये जो कील होते हैं ये बहुत ही नुकीली ऐसी वस्तुएं होती है। and that is his conscience. Conscience is is pricking him, and he's resisting that. और ये उसका विवेक था, उसका विवेक उसे बार बार बता रहा था, पर वो उसका विरोध कर रहा था। And Jesus said, "This is difficult for you to kick against the goats." और यीशु ने कहा कि इन कीलों के विरुद्ध उस पे लात मारना तुझे बहुत कठिन हो। And that is when he really submitted his life to Christ. और तब उसने अपने जीवन को मसीह को समर्पित किया। My prayer for all who hear me is, make sure that you are a true child of God. मेरी आप सबके लिए जो मुझे सुन रहे हो यही प्रार्थना है कि इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप परमेश्वर की सच्ची संतान हो। I told you some clear signs of a person who is really born again. एक व्यक्ति जिसका सच्चा नया जन्म हुआ है उसके कुछ साफ साफ चिन्ह मैंने आपको बताए हैं। I'm not telling this to condemn any of you. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी को भी दंड की आज्ञा दूं, किसी पर भी दोष लगाऊं। My desire is that your Christian life should be full of joy and it should be an exciting life. मेरी इच्छा आपके लिए यह है कि आपका मसीह जीवन आनंद से भरा हो और उत्साह से परिपूर्ण ऐसा मसीह जीवन हो। Because I live in repentance every day, my life is like that. क्योंकि मैं प्रतिदिन मन फिराव में जीता हूं, मेरा जीवन ऐसा है। I want like that to live every day in my life. इसी प्रकार मैं प्रतिदिन अपने जीवन में जीना चाहता हूं। This is my prayer for each one of you. You should live such a life every day. ये मेरी प्रार्थना आप में से हर एक के लिए है कि आपको ऐसा जीवन प्रतिदिन जीना है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।